Okay, we are on page number 35, chapter 4, Banking and Monetary Policy. Introduction is all of us may be aware of the word bank. We may have deposited our domestic savings in some bank in the form of term deposit or saving deposits. Parent of many of us may have opened an account in the same bank for the business transactions, and some parent might have receiving LPG, that is subsidiary, in their bank account. सुना है ये सब्सिडी के बारे में LPG? Yes. सुना है आप LPG के Yes, बारे ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया था आपके बैंक में जो LPG गैस हम लोग परचेज करते हैं तो सब्सिडी मिल रहा था. Besides, we may have paid our school fees by the way of check or some bank, and may have withdrawn some money from the bank to buy the television, refrigerator, etc. Parents of some of us may have borrowed money as a loan from the bank to purchase a house. Thus, in the modern time, most of our monetary transaction take place through bank. Different transaction हम लोग perform करते हैं. Monetary transactions we perform with the bank. So we'll be studying the different functions of bank, types of bank, and the importance of bank. Evolution and the meaning of banks. In English language, the word bank means heap or mass. Heap आपको पता है? Heap और mass क्या होता है? What is it? What is heap? हाँ बोलो प्रज्वल. हीप का Madam, मतलब stock. और हाँ स्टॉक ढेर ढेर लगता है ना हीप का मतलब. भावी. अरे हीप का मतलब बोल रही हूँ. हाँ बोल heap का मतलब. हीप का मतलब जो ढेर लगता है ना ज्यादा. हाँ. Yes. And in Sanskrit language, the word akin to bank is bhanda, which means collection of capital. The word bandod is derived from the bhanda Sanskrit word. The English word bank originated from the Italian word banca or from the French word banque. Both these words meant a bench for money exchange. पहले bench लेके और money exchange किया जाता था, जहाँ से beginning हुआ बैंक का, इसलिए बैंक word पड़ा from bench. In olden days, European money lenders or money changers used to display coins of different countries in the big heap on the benches. जो ये यूरोपियन मनी लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स जो मनी लैंड करते थे या आपकी मनी को चेंज करके कन्वर्ट करके देते थे, डिफरेंट कंट्री के कॉइन्स होते थे, हीप्स में वो बेंच पे लेके बैठते थे. बेंचेस और टेबल्स फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और एक्सचेंज करने के लिए बेंच का यूज किया जाता था, तो वो बेंच वर्ड में से बैंक बना. Thus, they were exchangers of the various coins, currencies of the various regions. The word bank came into use. वो bench में से bank word use होने लगा. It can be concluded that the word bank is related to collection of money. The Bank of Barcelona, set up in Spain in 1401, is known to be the first real bank.
ये सबसे पहले बैंक सेटअप हुआ था स्पेन में, बार्सिलोना स्पेन 1401 में। द फर्स्ट रियल बैंक एस्टैब्लिश, सबसे पहला बैंक जो बना था, एस्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड में, दैट वाज बैंक ऑफ बार्सिलोना। With the introduction of currency money, people started using money not only as a measuring rod of value. Measuring rod of value क्या पढ़ा था आपने? What is measuring rod of value? Money का use होने लगा as a measuring rod of value. What do you mean by that? उसका मतलब क्या? What is measuring rod? One of the function of money is it works as a measuring rod of value. जो मिसिंग था आपके बार्टर सिस्टम में, रिमेम्बर? बोलो प्रज्वल। मैडम उसमें ऐसा था कि हम लोग जब दो चीजों की कंपैरिजन करते थे तो 20 kg वीट के सामने 10 किलो राइस कितने का मिलता था, तो ये हमें पता नहीं था। तो जो मतलब मनी को हम लोग ऐसा यूज करने लगे कि कॉमन मेजरिंग रोड की तरह, मतलब कहीं पे भी जाके तो एक कॉमन वैल्यू होगी उस चीज की। यस, कि मेजरिंग रॉड ऑफ वैल्यू मतलब कि कोई भी कमोडिटी अगर आप बार्टर सिस्टम में खरीदते थे, एक्सचेंज करते थे, तो मेजरिंग रॉड नहीं था, आप ऐसे ही अप्रोक्सीमेट दे देते थे कि 4 मुट्ठी भर के आपने वीट दिया तो उसके अगेंस्ट इतना पीस ऑफ क्लॉथ दे दिया। बट मनी जब से आया तो मेजरिंग रॉड ऑफ वैल्यू मनी का एक फंक्शन था कि कोई भी कमोडिटी अगर आप लेते हो तो उसका वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है कि 5 रुपीज का है या 10 रुपीज का है। तो आपको अभी कमोडिटी के अगेंस्ट कमोडिटी एक्सचेंज नहीं करनी पड़ती है, यू आर एक्सचेंजिंग दी कमोडिटीज यूजिंग मनी एज अ मीडियम। तो कोई भी कमोडिटी का मनी के टर्म्स में वैल्यू आप डिटरमाइन करके और चीजों को खरीदते हैं या एक्सचेंज करते हैं। सो दैट इज मेजरिंग रॉड ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ अकाउंट और द मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बन गया। मनी वॉज यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि उसको मीन या मीडियम रख के आपने चीजों को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। डायरेक्ट एक्सचेंज करते थे कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी, तो अभी बीच में मनी आ गया और मनी के थ्रू आप कमोडिटी को एक्सचेंज करने लगे। बट ऑल्सो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अभी आप स्टोर भी कर सकते हैं, मनी को सेव भी कर सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब पेमेंट आप डिले भी कर सकते हैं, क्रेडिट पे भी सामान ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज पॉसिबल only because of money came into existence. With furthering in the function of money, there arose a need to maintain the value of money. In short, an economic system dependent on money, there arose the need for an institutional arrangement for the safety of money. तो मनी जैसा ही इकोनॉमी में आया, एग्जिस्टेंस ऑफ मनी जब आपने यूज करना शुरू किया या यू बिकेम डिपेंडेंट ऑन मनी, तो इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो गया कि वी ऑल बिकेम डिपेंडेंट ऑन मनी। तो तब आपको जरूरत होती है कि सेफ्टी भी करना जरूरी है मनी का। तो मनी को सेव करके कहीं पे रखा जाए, क्योंकि वैल्यूएबल हो गया मनी, सब उस पर डिपेंड करने लगे। इकोनॉमी में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता विदाउट मनी, तो सेफ्टी ऑफ मनी वाज इम्पोर्टेंट। नाउ ट्रांसफर ऑफ मनी की जरूरत हुई एंड मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू भी मेंटेन करके रखना। एंड द रोल ऑफ सच एन इंस्टीट्यूशन इज प्लेड बाय बैंक, तो इसलिए बैंक एस्टैब्लिश हुआ जहाँ पे आप मनी को सेफली रख सकते हैं। बैंक के थ्रू आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक पर्सन को आप
आपको मनी देना है तो बैंक के थ्रू आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी की वैल्यू को मेंटेन करके रखना है तो दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ बैंक। तो बैंक की वजह से ये सारे फंक्शंस पॉसिबल हुआ। देन meaning of bank, a bank is that institution which provides the services of banking। जो भी इंस्टीट्यूशन आपको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज कौन सी सर्विसेज बोल रहे हैं? तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट द मनी ऑफ द पीपल। लोगों के पास जो स्पेयर में है, सेविंग्स है, वो लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करना विद द पर्पस ऑफ लैंडिंग। वो पैसे जो लोगों से लिए आपने उसको लैंड करेंगे उन लोगों को जिनको पैसे की जरूरत है। तो उन लोगों से पैसे कलेक्ट करना है जिनके पास स्पेयर मनी है, सेविंग्स है, और लैंड करना है उन लोगों को जिनको पैसे की जरूरत है। पर कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा कि जब भी वो आपके डिपॉजिटर डिमांड करते हैं, अपने पैसे वापस मांगेंगे, तो कोई भी बैंक डिनाई नहीं करेगा। बैंक हैज टू रिटर्न दी मनी टू द डिपॉजिटर। A bank is a commercial organization functioning for the profit। बैंक भी कमर्शियल है, वो भी प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही काम करता है। which accept the people saving लोगों का एक्सेप्ट करेगा, एंड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, लोगों से उन्होंने डिपॉजिट के फॉर्म में पैसे कलेक्ट किए और उनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा अगेंस्ट मनी दैट दे हैव डिपॉजिटेड। तो जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे, बैंक पे करेगी, दैट इज मच लेस देन कि जब वो लैंड करती है बैंक मनी जिनको जरूरत है पैसे की, तो वहां पे भी वो जब लैंड करेगी मनी तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी कंपेयर टू उन्होंने जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है डिपॉजिटर को, उससे कई ज्यादा वो चार्ज करेगी फॉर लैंडिंग मनी। एंड इन्वेस्ट द सरप्लस फंड, तो उनको जो भी मनी सरप्लस होता है जो डिपॉजिटर से मिला, कुछ पार्ट वो लैंड कर देंगे, उनको दे देंगे जो पैसे की उनको जरूरत है, लोन लेना चाहते हैं तो लैंड कर देंगे पार्ट ऑफ डिपॉजिट, और कुछ पार्ट वो इन्वेस्ट भी करेंगे। और ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कि प्रॉफिटेबल हो, जिससे वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे कि नेशन का डेवलपमेंट होगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ बैंक। तो उनको अर्निंग कहाँ से होता है? तो इंटरेस्ट वो ज्यादा चार्ज करते हैं लैंडिंग के टाइम पे कंपेयर टू इंटरेस्ट जो वो पे करते हैं डिपॉजिटर को। तो दोनों ही इंटरेस्ट के बीच में जो उनको डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट हो जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इन द डिफरेंट सेक्टर्स, वहां से भी उनको इनकम मिलता है। तो बैंक इज कमर्शियल विच वर्क्स ऑन और with the aim of earning profit. To state briefly, bank are instrumental in mobilizing the money। मनी को सर्कुलेट करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए इकोनॉमी के अंदर बैंक एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, मीन है। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मनी विच इज नॉट मोबिलाइज among the activities tend to fall at a future date। तो मनी जो स्टॉक ऑफ मनी है, जो पड़ा है, जो मोबिलाइज नहीं हुआ है, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो उसका भी यूज करना इन द वेरियस सेक्टर में वो उसको इन्वेस्टमेंट करेगा, एक तरीके से मोबिलाइज करेगा, सर्कुलेट करेगा मनी को। वैल्यू ऑफ सर्कुलेटिंग मनी टेंड्स टू इंक्रीज। जैसे ही मनी सर्कुलेशन में जाएगा तो उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, और जब पड़ा रहेगा तो वैल्यू उसका फॉल हो सकता है। तो बैंक इज द इंस्टीट्यूशन और इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से मनी जो है सर्कुलेट होता है, मोबिलाइज होता है इन द इकोनॉमी। क्लियर है टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then we have classification of the banks। कमर्शियल बैंक्स है एंड सेंट्रल बैंक है। Commercial bank is according to the Banking Companies Act
1947. Commercial bank is one which, क्या हुआ साहिल? Sahil, why did you raise your hand? साहिल, कुछ पूछना है तेरे को? Commercial bank is one which transacts the bank business of banking, that is accepting the deposit from the people. लोगों से money accept करेगा, deposit from the people, और इसका purpose क्या है? Purpose of lending या investment भी करेंगे in the various sectors of the economy. But condition होगा कि repayable, अगर डिपॉजिटर ने डिमांड किया अपने पैसे वापस मांगे, अदरवाइज एंड विड्रॉवल, डिपॉजिटर ने डिमांड किया बाय चेक या विड्रॉ किया कैश या ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज किसी भी तरीके से डिपॉजिटर ने अपने पैसे वापस मांगे तो उनको रीपे करना जरूरी है. A commercial bank is a business unit which provides the banking services for profit. कमर्शियल बैंक है जो प्रॉफिट के एम से काम करेगा. पीपल एंड ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, इसीलिए वो सेविंग करते हैं बैंक में. विच बैंक हैंडल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. बैंक ऑल्सो यूज सम ऑफ दीज डिपॉजिट फॉर द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयरफॉर दे गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर. बैंक जो है लोगों के डिपॉजिट को यूज करेगा लेंडिंग पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और क्योंकि वो डिपॉजिटर्स के पैसे यूज कर रहे हैं इसीलिए उनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा. बैंक में यूज द डिपॉजिट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉर द डेवलपमेंट, और दे मे बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी वो परचेज करेगी बैंक. वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. दे में लैंड सम प्रपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द पीपल, कुछ मनी लैंड भी किया जाएगा उन लोगों को जिनको पैसे की नीड है. व्हेन बैंक्स इन्वेस्ट सम ऑफ द डिपॉजिट्स दे अर्न प्रॉफिट. इन्वेस्टमेंट करने से भी प्रॉफिट मिलता है. इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है लेंडर्स लैंडिंग करते हुए, वहां पे भी उनको इंटरेस्ट जो हाई चार्ज करते हैं, तो बैंक को वहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखते हैं, इसलिए इंटरेस्ट उनको अर्निंग होता है. व्हेन दे लैंड द मनी दे अर्न थ्रू चार्जिंग इंटरेस्ट टू द बोरोवर्स. द lending rate of interest is higher than the rate of interest which bank give on the deposit. और जो दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट बनता है बैंक का. Hence बैंक आर कॉल्ड द कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस से काम करता है इसीलिए वो कमर्शियल इंस्टीट्यूट बोला जाएगा. इन अदर वर्ड्स बैंक अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल्स मनी. एक तरीके से पैसे को सर्कुलेट करता है, मोबिलाइज करता है in order to make profit, and therefore they are commercial institutions. Clear है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. madam. Yes, ma'am. Anybody is having any doubts here? No, ma'am. No, ma'am. साहिल कहाँ चला गया? मैम ये रहा यही. साहिल तेरे को सुनाई दे रहा है ना? मेरे को तेरी शक्ल दिखा. यस मैडम सुनाई दे रहा है. कहाँ है मैं घर पर साहिल?